Hey, hello everyone. How are you all? So, I am Rishita Mudwani. I'm a chartered accountant and an advocate by profession and a teacher here by passion. So, I am here to teach you about stock markets. Now, when we talk about stock markets, as a kid, when I used to listen on TV, I used to hear the word shares, stock, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है. I used to wonder like, what is it? What they are talking about? What do you mean by shares word even? Today we will learn that step by step from the basic word what is shares. I will make you reach up to see how to trade in shares, and how to make a lot of money in stock market. Now, coming back to the very basics, very basic, which is शेयर. शेयर होता क्या है? स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बट ये शेयर होता क्या है? Okay. So to understand that, let's come back to the root. Let me tell you a story. Okay. I'll make a story, and in this story I'll make you a hero. Okay. So now let's understand. Suppose if you are sitting with your friend and both of you have some business idea, and now you're thinking about that. um, let's think about a business and let's run a business. Now you have a good business model ready, right? You will, let's say, in 2007 you are Sachin Bansal and you have started a business which is called as a Flipkart, right? So you will be buying some stuff, you will be selling some stuff, you will be making some profit, right? For which हमने इतना मेहनत किया है. And the business start करने के लिए, obviously if you want to start the business, you need to invest some money, and whatever money you are investing is called as what? Is called as your share capital, right? So, what is share capital? Share capital is the money which you have invested in the business. Now, what will happen is, when you have started up with the business, there will be some documentation you will be doing, because you have to register your company with the registrar of companies, right? Obviously, you need a physical place. So, for that physical place, what you will be doing is, आप क्या करेंगे? आप एक प्लेस आपने सेटअप करा कि अच्छा ये प्लेस हमारा बिजनेस सेटअप है, फिलहाल फॉर अ स्टार्ट हमारा छोटा सा ऑफिस है, और उस जगह को आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर करा दिया कि ये फिजिकल प्लेस हमारा है. तो जैसे पेटीएम के प्रमोटर हैं मिस्टर विजय शेखर शर्मा, राइट? तो जो पर्सन, जैसे कि आपका फ्रेंड, जिसको ये आइडिया आया कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने कंपनी को बेसिकली फाउंड किया, एंड फाइंड करने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी को स्टार्ट करा, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रमोटर ऑफ द कंपनी. Fine, clear with the basic fundas, with the promoter of the company. Now, अब ये प्रमोटर तो हो गया, अब बिजनेस को चाहिए मनी. बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, राइट? फ्रॉम वेयर द मनी विल कम इन. ओके, तो लेट्स से मैं और भी फ्रेंड्स से बात करती हूँ, एंड हम बोलते हैं कि चलो आप, मैं, हम सब मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बिजनेस तो स्टार्ट हो ही चुका है, पैसा भी लगाते हैं. So let's say that we are five friends, or let's say we are 10 friends. Okay. Now, if we are 10 friends, so let's say we are 10 friends. Okay. So that means we are 10 people who are promoting the company. Now, suppose each person, I will not complicate this much. मैं बोलती हूँ that we are 10 friends together, and the company requires 10 lakhs of capital. Now, what do you think? How will I get this 10 lakh capital? Okay, now this company, now we are 10 friends who are the promoters and are ready to start the company, and we need 10 lakhs of rupees to start the venture, which is Flipkart. How will we start?
we will obviously, okay, let's say we are distributing, okay, the proportion is not necessarily to be equal, but here in this example let's take कि हमने ऐसा करा है कि एक फ्रेंड जो है आपका, जो एक फ्रेंड है रादर एक प्रमोटर है, वो 1 लाख रुपीस डालेगा। नाउ वन फ्रेंड 1 लाख डालेगा। अगर मैं पकड़ती हूँ कि 100 शेयर्स हैं कंपनी के, मतलब कि एक फ्रेंड को कितने शेयर्स मिलेंगे, 10 शेयर्स पर पर्सन को मिलेंगे, जो कि 10 शेयर्स पर पर्सन को मिलेंगे जो कि 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स हमारा जो 1 शेयर होगा उसका जो प्राइस होगा विल बी 10,000 रुपीज। ना यू से ओके दैट्स फाइन। अब इसमें क्या बड़ी बात है, एक शेयर 10,000 रुपीज का है। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमारा बिजनेस चलने लगा। नाउ आफ्टर 1 ईयर हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ। आपने सुना होगा अभी नायका के लिए, पेटीएम के लिए कि इतना हाईली वैल्यूड है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, पीई रेशो, ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे। ऑब्वियसली वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस। पीई रेशो को अगर मैं एक वर्ड में बताऊं, प्राइस अर्निंग रेशो जो कि होता है, वो ये आपको बताता है कि कंपनी का जो भी प्राइस है वो कितना फेयर है। अगर मैं बोलती हूँ कंपनी 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज अ लिटरल मीनिंग, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन, बट 15 के पीई पे ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है अगर ये 1 रुपी कमाती है तो ये 15 रुपीज़ की प्राइस चार्ज करती है। मतलब लेट्स से आज आप ये पर्टिकुलर चीज़ खरीद रहे हैं, तो अगर ये चीज़ आपको 1 रुपी कमा के देगी साल का, राइट, एनुअल बेसिस पे, तो मैं ये चीज़ आपको 15 रुपीज़ में बेच रही हूँ, तो आप मुझसे ये चीज़ 15 रुपीज़ में बाय करेंगे और इसमें से आप साल का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो इस तरह से पीई काम करता है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स काम करते हैं। नाउ ये जो मेरी फ्लिपकार्ट कंपनी है इनिशियली कुछ प्रॉफिट निकाल रही थी, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख। सपोज मेरे बिजनेस ने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, आपके बिजनेस ने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। अब हमारा ये बिजनेस ग्रो तो बहुत अच्छा कर गया डेफिनेटली। अब ग्रो करने के बाद एक पॉइंट के बाद लेट्स से हमारे ईयरली प्रॉफिट्स 5 लाख आने लगे। जो हमने इन्वेस्ट किया था वो तो पैसा हमने प्रॉफिट्स के रूप में ले ही लिया, और भी अब हमारा प्रॉफिट्स बढ़ता गया। अब जैसे कि ये प्रॉफिट्स बढ़ते गए, अब आपको पता होगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, हम रुके हैं, यहाँ भी आपको इसके बारे में भी पता होगा किस तरह से फंडिंग ली जाती है, फंडिंग किस तरह से की जाती है, राइट। सो यू अंडरस्टैंड द डीप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग। करते क्या है, वैल्यूएशन होती कैसे, उनको लगता है इस बिजनेस में तो बहुत दम है, ये तो बिजनेस 20 लाख 50 लाख साल का कमा रहा है, ठीक है। आइडिया छोटी सी थी, इन्वेस्टमेंट छोटी सी थी, बट बिजनेस में बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत चल पड़ा। अगर ये बिजनेस साल का 50 लाख कमा रहा है, आप बताओ, तो अगर मैं बोलती हूँ कि नॉर्मली इस इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस हैं वो 10 के पीई पे ट्रेड करते हैं, मतलब 10 गुना ज़्यादा पे इनकी वैल्यूएशन होती है। जो जैसे मैंने आपको कहा ये 1 रुपी कमा के देगा तो 15 रुपीज़ इसका प्राइस है, अगर ये 15 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मेरा बिजनेस है, सपोज ये मेरा बिजनेस इंडस्ट्री 10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और अगर मेरा बिजनेस 10 लाख तो लगाया था, 10 लाख प्रॉफिट साल का जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख से इसका जो वैल्यूएशन है, 10 लाख ये कमा के दे रहा है, तो इस बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100 lakhs. Now understand that if this business is giving you 100, if this business is valued at 100 lakh rupees, but आपने इस बिजनेस जो स्टार्ट किया था तो तब वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपीज, तो इसकी वैल्यू 10 लाख से 100 लाख चली गई, 10 टाइम्स चली गई। आपने एज अ फ्रेंड कितना इन्वेस्ट किया था, 1 लाख, यानी कि आपका जो स्टॉक, आपका जो प्राइस है, आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं, उनका प्राइस 1 लाख रुपीज से कितना हो गया, 10 लाख रुपीज हो गया। आपका प्राइस 10 टाइम्स हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेल ऑफ कर सकते हो, राइट।
तो अब इसको आप कैसे सेल ऑफ करें? सो देर आर डिफरेंट वेज। एक होता है OFS, आपने सुना होगा। OFS इज ऑफर फॉर सेल। अब ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में व्हाट हैपेंस इज, ऑफर फॉर सेल में आपका जो कंपनी होता है वो मनी रेज करता है बाहर से मनी रेज करेगा। बाहर से जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बोलेंगे कि हम इसको 10 लाख रुपए में लेने के लिए रेडी हैं, एंड दे विल पुट देयर मनी इन आवर बिजनेस। और क्योंकि वो हमारे बिजनेस में मनी पुट इन करेंगे, डालते जाएंगे वो हमारे बिजनेस में पैसा, तो हम उन पैसों को बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आर बिजनेस विल ग्रो मोर एंड मोर। हम और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बिजनेस को बेटर बनाएंगे, राइट। आई टोल्ड यू अबाउट कि आपका जो स्टॉक था, जो कि आपने 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें आपको 100 शेयर्स मिले थे, अब उसका जो प्राइस है वो कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, राइट। आपका जो 10 लाख रुपए था वो 100 लाख रुपीज़ हो गया। अब आप क्या करेंगे इसका, राइट? समवन विल कम टू बाय दैट पार्ट। अब जैसे ही someone has come to buy that part, you will obviously sell them। अब आप उनको कैसे सेल करेंगे, we will understand in detail। उसके अलावा कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाती है, तो let's say whatever profit the company is making, that profit the company, let's say 10 लाख कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब ये कंपनी के ऊपर है कि कंपनी इसमें से कितना पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रखती है, राइट, एंड कितना पार्ट ऑफ द प्रॉफिट प्रमोटर्स को दे देती है कि आप घर लेके जाओ, दिस इज योर मनी। सो व्हाटएवर द कंपनी इज अर्निंग, मे बी सबको पे करने के बाद, डेट होल्डर्स को सबको पे करने के बाद, लास्ट में कंपनी को ये प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्सेस। दिस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट होगा जो रिटर्न जाएगा किसके पास, प्रमोटर्स के पास, विच इज प्रमोटर्स के पास, या जिन्होंने भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। And that part, that whatever is given back to them is called as dividends। और जो पार्ट उनके पास वापस नहीं जाएगा, जो बाकी का पार्ट कंपनी में री इन्वेस्ट हो जाएगा ताकि कंपनी और ग्रो हो सके, that is stored in the business, kept in the business in the form of retained earnings and reinvested in the business to grow more। Now when we were speaking about raising the money, now if we want to raise the money, how should we raise the money? To raise the money, as I said that there are two ways, right? There are different ways obviously, but one thing what you can do is, one fancy term which you might have heard about is IPO, and another is OFS, right? So when I speak about OFS, which is offer for sale, what we do is, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर्स किसी और को बेच देंगे, दैट इज ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर्स ने कहा कि हमको शेयर्स की इतनी जरूरत नहीं है, हम अपना जो हिस्सा है वो कम करने के लिए रेडी और दूसरों को देने के लिए रेडी, पब्लिक को आने दो। पब्लिक में अब कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है। पब्लिक में शेयर्स इशू करना का मतलब हुआ अब कंपनी कन्वर्ट हो रही है ताकि पब्लिक भी इसमें हिस्सा ले सके, इसके प्रॉफिट्स में। इसी का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, IPO करके, बहुत OFS भी सुना होगा, बट IPO आ रहा है, इसका IPO आ रहा है, उसका IPO आ रहा है। IPO, द वर्ड IPO आपको फुल फॉर्म तो पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बेसिकली होता क्या है? ये नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स की तरह नहीं होता है कि आपने नॉर्मल आपने स्टॉक्स शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में इशू हुआ। नो, नॉट एट ऑल। IPO जब इशू होता है ना, तो एक प्राइस बैंड होता है। लेट्स से ऐसे प्राइस बैंड होगा, 100 रुपीज से लेकर 130 तक के बीच में आप बिड कर सकते हो। जब आप IPO अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है 100 to 130 के बीच में बिड करने का। अब एक बात बताओ, अगर आप 100 पे बिड कर रहे हो, इसका मतलब आपको कंपनी की वैल्यू नहीं है, राइट? आप खरीदना ही नहीं चाहते हो, इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप डिस्काउंट कर रहे हो, बार्गेन कर रहे हो। लेकिन अगर आप 130 पे बिड करते हो, इसका मतलब ये है, बिड करना मतलब बोली लगाना, ऑक्शन में जैसे बोली लगाते हो ना,
1001, 1002, 1003 काइंड ऑफ दैट, बट यहाँ पे इट्स इन द रिटर्न फॉर्म। सो अगर आप 130 पे बिड करते हैं, इसका मतलब है कि आपको ये कंपनी का शेयर हर हाल में चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, IRCTC का जब IPO आया था तो सबको पता था कि ये बहुत अच्छा IPO है, सबने हाईएस्ट जो नंबर था उसी पे बिड किया था और वो 104 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। ऐसे ही डीमार्ट का भी इसी तरह से कुछ 100 टाइम समथिंग सब्सक्राइब हुआ था, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, लोगों को पता होता है। सो IPO उसका उतना टाइम सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ का क्या मतलब हुआ कि एक शेयर, मतलब कि कंपनी ने सपोज 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने 20,000 अप्लाई कर लिए, मतलब कि बाहर से 20,000 की डिमांड आ गई। 10,000 कंपनी के पास है, बाहर से 20,000 की डिमांड आ रही है, इसका मतलब 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ, राइट, 2 गुना। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ 100 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो मैंने एक शेयर इशू किया और पब्लिक 100 लोग मांग रहे हैं एक ही शेयर को, तो बाकी जो 99 लोग हैं उनको वो शेयर नहीं मिल पाएगा, सिर्फ एक ही को मिलेगा, वो प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट होगा। ये एक प्राइस बैंड होता है, राइट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक के प्राइस के बीच में आप बिड करो, बिडिंग होती है। उसके बाद जो भी एक कट ऑफ प्राइस होता है, देयर इज अ वे वी नो दैट अलग से। सो कट ऑफ पे वो आपका निकलता है प्राइस कि हाँ ये पर्टिकुलर प्राइस है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे IPO इशू होगा। अब IPO इशू हो जाएगा, राइट, ये है आपका कैप प्राइस, ये है आपका फ्लोर प्राइस, कट ऑफ प्राइस जो भी डिसाइड हुआ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है या बीच का कोई प्राइस हो सकता है। जिस भी प्राइस पे आपका जो इशू हो गया शेयर, IPO फाइनल प्राइसिंग डिसाइड हो गई, अब जब कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी उन पैसों का क्या करेगी, जो कंपनी ने IPO में रेस करे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जो कंपनी पहले ही बता देती है कि मैं लोन्स रीपे करना चाहती हूँ, मैं कंपनी के लिए डेवलप करना चाहती हूँ, मैं कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करना चाहती हूँ, मैं इस मनी को कोई डेली ऑपरेशंस में यूटिलाइज करना चाहती हूँ, वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहती हूँ, जो भी वट एवर इज द एजेंडा, कुछ फंड रिसर्च करना चाहती हूँ। तो जो भी कंपनी इन पैसों से करना चाहती है, द कंपनी विल डू इट फ्रॉम द IPO मनी और OFS मनी। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि IPO की जब मैं बात करती हूँ तो एडिशनल पैसा हम रेस कर रहे हैं एडिशनल शेयर्स के थ्रू। OFS में शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स वही रहेंगे, ओनर्स का, प्रमोटर्स का हिस्सा कम हो जाएगा। देखो थोड़ा बहुत कम तो वहां भी हो जाएगा, बट वहां क्या होगा कि मेरे पास पहले भी 10 शेयर थे, अभी भी 10 शेयर है। कम OFS में कंपनी के पास 10 शेयर थे, 10 ही रहेंगे, प्रमोटर ने अपने 5 पब्लिक को दे दिए, राइट, कंपनी के टोटल सेम रहे। IPO में क्या हुआ कि कंपनी के टोटल 10 से 20 हो गए, तो पहले मेरा अकेले का 10 था, 100% था, अब मेरा 50% हो जाएगा, और बाकी जो 10 एडिशनल रेज हुए इन द फॉर्म ऑफ IPO वो आपका पब्लिक को मिलेगा, राइट। और इंटरनली भी देयर आर ट्रांसफर। जब तक ये कंपनी हम प्रमोटर्स के बीच में थी, तब तक हम प्रमोटर्स ही इसके साथ डील कर रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई थी, विच इज आपका विच इज काइंड ऑफ अ प्राइमरी मार्केट, राइट। तो जब आपको कोई चीज चाहिए और आपने डायरेक्टली कंपनी से खरीदी, नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, वो नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, या IPO के थ्रू हो सकता है, किसी के भी थ्रू। अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदा तो वो होता है आपका प्राइमरी मार्केट। बट अगर आपने कंपनी से डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदा, अब क्या हुआ, हम आगे चलते हैं एक स्टेप। तो अब हमने लिस्टिंग कर दी, IPO हो गया, लिस्टिंग कर दी का मतलब ये होता है अब आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपकी कंपनी का वो पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली कहाँ अवेलेबल है, कहाँ जाएं हम, स्टॉक एक्सचेंज में जाओ। तो यहाँ पर वी हैव 2 स्टॉक एक्सचेंजेस विच इज NSE एंड BSE। NSE BSE आर द 2 स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ पर आप जाके स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं।
जो भी स्टॉक्स पब्लिकली लिस्टेड है। एनएससी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, डीएससी में वॉल्यूम कम है, बट डीएससी बहुत ज़्यादा ओल्ड, बहुत साल पहले आया था, एनएससी थोड़ा आप कहीं भी जाइए प्राइजेस आपको सेम ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस कुछ पैसा का होता है, दैट इज द आर्बिट्रेशन, रुक नहीं पाता है। एंड एनएससी बीएससी में आप जाके आपका शेयर लिस्ट हो गया, आपने आईपीओ लॉन्च कर दिया या आपने ओएफएस कर दिया, अब आपका जो स्टॉक है वो आपकी इस एक्सचेंज में बिकने लगेगा। अब यहाँ पर ना कौन खरीदने आएगा, अब मिस्टर ए को तो कंपनी से मिल गया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे आईआरसीटीसी का आईपीओ नहीं मिला था, मैंने अप्लाई करा था, तो अब मैं क्या करूं, आई फेल्ट बैड, मुझे तो मिला नहीं, तो मैंने क्या किया था, मैंने प्राइमरी मार्केट में अप्लाई किया था, मुझे मिला नहीं, अब मैं क्या करूं, मैंने फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदा था, राइट। तो अराउंड 300 के आसपास प्राइमरी मार्केट में प्राइस था, मुझे मिला नहीं, बाद में 600 के आसपास मैंने उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीद लिया। सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये एनएससी बीएससी में जिन लोगों को 300 में मिला उन्होंने यहाँ पे 600 में बेच दिया, राइट, मुझे बेच दिया, मैंने इसको कुछ ही टाइम में 1200 में बाहर बेच दिया, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे होता है OLX पे क्या होता है, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं और सामान खरीदते हैं, वैसे ही ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स आते हैं। हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, किस तरह से प्राइसिंग चलती है ऑनलाइन, बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, दोनों अपना अपना प्राइस देते हैं। कुछ लोग मार्केट से खरीदने के लिए रेडी होते हैं, यहाँ जो प्राइस में मिल रहा है मिल जाए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे को तो ये स्पेसिफिक प्राइस चाहिए, तो वो अलग तरह के लिमिटेडर्स, मार्केटर्स होते हैं जो भी लोग डालते हैं, और किस तरह से वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं। सो माय कंक्लूजन इज प्राइमरी मार्केट इज कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदना, एंड सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट जहाँ पे आपस में शेयर लेते हैं, मैं कंपनी से लेकर आ गई, अब हम आपस में एक दूसरे को ले दे रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना, इसी को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसी को हम कहते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार आज कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट आज कैसा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, ऑल अबाउट सेकेंडरी। टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ पास्ट। मेरे मॉम, मेरे दादाजी क्या करते थे, उनके टाइम पर ना फिजिकल शेयर्स होते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, अच्छा भाई आप इतने शेयर्स के हकदार हैं, आप इतने शेयर्स के ओनर हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा वो हवेली सेल होती थी, बाय होती थी, तो उस पर इतने नंबर ऑफ, इतनी बड़ी हवेली के आप ओनर हैं, राइट। सो इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो है, इतने इतने शेयर्स आपके लिए हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट इशू होता था। एक बार मेरा एक सर्टिफिकेट पे चाय गिर गई, अब आप बताओ, नॉट मेरा, मेरे दादाजी का। अभी तो बहुत कम ऐसा होता है कि अभी भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, येस, बट वेरी लेस, मोस्टली हम उनको डीमैट अकाउंट में ही डील करते हैं। सो चाय गिर गई तो वो सर्टिफिकेट खराब हो गया, फिर कंपनी में जाओ, नया बनवाओ, कितनी मेहनत है ना। बट अगर मैं डीमैट की भी बात करूँ तो एक टाइम होता था जब हम कॉल करके बोलते थे कि ब्रोकर को बोलते थे ये खरीदो, ये बेचो, इट वॉज डिफिकल्ट। बट अब इंटरनेट बूम आ गया है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस बूम आपके पास आपका यूज़र आईडी होता है, पासवर्ड होता है, आप खुद अपना अकाउंट लॉग इन करो, खुद बाय करो, सेल करो, आप भी वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड स्टॉक्स खरीदो बेचो, वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, T+2 2 दिन के अंदर अंदर आपके होल्डिंग में दिखने लगते हैं। अभी आपके ट्रेड बुक में दिखते हैं कि हाँ भाई आपने इतने इतने स्टॉक्स खरीद लिए, और वो आपके जो भी आपने इक्विटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करी वो सब आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगती है। सो ई फॉर्मेट हो गया है, जैसे आपका अकाउंट है, जैसे आप जीपे करते हैं वैसे ही कुछ इस तरह से। सो इसके लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। सो देयर आर 3 अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज द अकाउंट जहां से आप, जिसमें आप पैसे रखते हैं। डीमैट अकाउंट में आप क्या रखते हैं, डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट से बेच सकते हैं।
एंड डीमैट अकाउंट नॉर्मल बैंक में नहीं होता. सो लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक में मेरे पैसे पड़े. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, राइट, विच इज़ सेबी के अंडर जो रेगुलेटेड है, उसके पास मेरे डीमैट अकाउंट है एंड वहाँ पर मेरे शेयर्स पड़े हैं डीमैट फॉर्म में. यानी कि डीमैट को बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी कि फिजिकल फॉर्म नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, राइट, बट आप उसको यूज़ कर सकते हैं. वो पैसे हैं जैसे आपका जी पे है काइंड ऑफ, आप उसको टच नहीं कर सकते. सेम शेयर्स हैं इन द डीमैट अकाउंट जो कि आपका एक्चुअली में आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं बट फिजिकल फॉर्म में नहीं है. बहुत बेनिफिशियल है पहले से. दिस इज़ कि आपको पेपर्स नहीं संभालने पड़ते, आप आसानी से उनको स्टोर कर सकते हैं. आप कभी भी किसी को दिखा सकते हो, देखो मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, मेरे पास इतना इतना अमाउंट है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, राइट. और आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक्स ही डीमटेरियलाइज्ड हैं. आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप जी सेक खरीद सकते हैं, आप डिबेंचर्स खरीद सकते हैं. ऑब्वियसली वी विल लर्न कि ये सब क्या होता है, बट एनी फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनी फॉर्म ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टाइप के शेयर्स आप खरीद सकते हैं और आप अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.